दोस्तों डीप स्टेट थ्योरी में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये रिवील करने वाले और कोई नहीं यूएस के सबसे बड़े पत्रकार टकर कार्लसन ने किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, टकर कार्लसन अगर आप देखें तो इन्होंने रिसेंटली पुतिन का भी इंटरव्यू लिया था। ये वही व्यक्ति हैं। दोस्तों इन्होंने कहा है कि यूएसए कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये ट्रिरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। यूएस में फिर वो प्रेसिडेंट हो या कांग्रेसमैन, सभी के सभी यूएस की इंटेलिजेंसी से डरते हैं। और डरने का कारण बड़ा सिंपल है, उनको डर लगता है कि कहीं उनके कंप्यूटर में बच्चों की अश्लील तस्वीरें वीडियोस से भर के उन्हें गलत तरीके से फ्रेम ना कर दिया जाए। इसके सिवा उनका जो लाइफस्टाइल भी है इन सारे कांग्रेसमैन का, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। इस प्रकार का लाइफस्टाइल वो जीते हैं कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना सीक्रेट एजेंसीज के लिए बड़ा आसान है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेवलेशन है ये टकर कार्लसन से आ रहा है और ये आया है जो रोगन के पॉडकास्ट में। क्या सामने आया है दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सोचें कि ये टकर कार्लसन कौन है, आपको बता देता हूं दोस्तों, इनके 13 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर में है। लंबे टाइम तक इन्होंने अलग अलग यूएस की न्यूज एजेंसीज में काम किया है। फिर वो फॉक्स न्यूज हो गया है, उससे पहले भी अलग अलग न्यूज एजेंसीज थी। दोस्तों ये जो कहते हैं, कहीं ना कहीं इनको भले लोग डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करें, लेकिन इनकी बातों को सीरियसली लेना होगा। क्या एग्जैक्टली कहा है जरा आप ये वीडियो में खुद सुन लीजिए। Members of Congress are terrified of the intel agencies. I'm not guessing at that. They've told me that, including people on the intel committee, including people who run the intel committee, the people whose job it is to oversee and keep in line these enormous secretive agencies whose budgets we can't even know. They're black budgets. They're the parents. The agencies are the children. They're afraid of the agencies. That's not compatible with democracy. Democracy is a really simple system, even representative democracy like ours. The people rule. They do so through elections. They express their preference through voting. They send their people to the capital city to run the government on their behalf. Whenever you have unelected people who are not accountable to anyone making the biggest decisions, you don't have a democracy. You have something else, another system. I would call it a tyranny or whatever you want to call it. It's not a democracy. So that's like super obvious. It's playing out in front of everyone and no one cares and no one does anything about it. And I think the reason is because they're threatened. And if you look at the committee chairmen who allow this shit to happen year after year, they're all, and I don't know, people say, oh, they're compromised, they're being blackmailed. I don't have evidence of that, but I know them, and they all have things to hide. I know that for a fact. And so it's not a stretch of imagination to imagine that, some committee chairman who's allowing warrantless spying on Americans to continue, or whatever abuse they're allowing, knowing fully or hiding the truth about UAPs, ignoring the UAP Disclosure Act of 2023, like, why are they doing that? It's not impossible to imagine that some guy with a drinking problem or a weird sex life, and that's very common up there, that's why they're doing it. Because they don't want to be exposed. I don't have evidence of that. I don't have proof of that. Right. But that's not a crazy thing to assume that could be happening. And I said to somebody, a very powerful person, the other day in a conversation in my kitchen, an elected official, holds a really senior position, a very famous person. I was going crazy. I was so mad about all this stuff and about the warrantless spying and about the funding for these insane wars. And I said to the guy who serves in one of the legislative bodies, I got so mad my dogs were afraid. They're like, well, why are you yelling? Because I don't yell at home. But I was like, all these people are controlled. They're all, got weird sex lives and all these things are hiding and they're being blackmailed by the intel agencies. And he said, and I'm quoting, I know. I was like, okay, so at this point we're just sort of admitting that's real? Like, why do we allow that to continue? दोस्तों आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो यूएस की इंटेलिजेंसी है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, सिंपल शब्दों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सभी के सभी सीआईए के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंसीज अगर आप देखें तो ये ऐसी थ्योरी है कि ये किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। वो जो डीप स्टेट है उनके लिए ये जो इंटेलिजेंसीज हैं वो सभी के सभी उस वॉच डॉग का काम करते हैं। उनको जो चाहिए वो, मैं नाम नहीं बोलूंगा, इंटेलिजेंसीज में बार बार यूज करना चाहूंगा, वो इंटेलिजेंसीज ये सारा काम करवा रही हैं उनके लिए। किनके लिए आप भी जानते हैं दोस्तों, ये सारा का सारा जो डीप स्टेट का कबाल है, फिर वो अलग अलग जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं हो गए, सोरोस से लेके सभी कोई, उनके बिहाफ में ये इंटेलिजेंसीज काम करती हैं। दोस्तों क्या है ये पूरा न्यूज, आइए डिटेल में देखते हैं कौन सा सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ है जो कि इस वक्त आपके फोन को भी सुन रहा है। शायद हमारे जो कॉन्वर्सेशन फेसबुक में, व्हाट्सएप में होते हैं, एक एक चीज पर उनकी नजर है। वो कौन सा लॉ है उस पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ टकर कार्लसन ने और क्या कहा है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, ये सारी अमेरिकन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनको ये इंटेलिजेंसी सुनती हैं, वहां पे आप हमें फॉलो
कर सकते हैं। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, जो रोगन का जो पॉडकास्ट है उसमें टकर कार्लसन आए थे। उन्होंने कहा कि जो मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं ये डरते हैं इंटेलिजेंसीज से। उनको मालूम है इंटेलिजेंसीज एब्यूज कर रही हैं, उनको जो पावर दिया गया है वो अनचेक्ड है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, ना चेक है ना बैलेंसेस है, क्योंकि यही संस्थाएं अपने मालिक को ही थ्रेटन करती हैं, डराती हैं। यहां पे दोस्तों वो कह रहे हैं कि यूएस डेमोक्रेसी नहीं है, ये टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड हो चुका है। जैसा आपने सुना कि इनका काम है ये जो ब्लैक बजट है, क्योंकि ये बजट डिस्क्लोज नहीं होता, जस्ट लाइक एनी अदर। दुनिया में कहीं भी इंटेलिजेंसीज का बजट कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ सेलेक्ट लोग होते हैं जो कि उसके ऊपर निगरानी बना के रखते हैं कि ये अब्यूज तो नहीं कर रहे। वो सभी के सभी लोग जो अब्यूज को चेक करने के लिए बैठे हैं वो खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसा आपने उस वीडियो में सुना। दोस्तों, यहां पे ये सब कुछ न्यूज में आया जब फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट सामने आया। दोस्तों, 20 अप्रैल को इसको वापस से पास किया गया है। सेक्शन 702 है इस लॉ में। क्या है इसमें? इसके द्वारा यूएस गवर्नमेंट बिना वारंट के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ नॉन अमेरिकन, यानी कि आपके मेरे जैसे लोग जो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, जीमेल में, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यदि कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अमेरिकन उसे सुन सकते हैं विदाउट अ वारंट। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या तब आती है जब अमेरिकन का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन भी तो नॉन अमेरिकन से बात कर रहे हैं ना। तो उनका कहना है कि इस प्रकार से आप अमेरिकन का भी कम्युनिकेशन सुन रहे हैं और इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल है। मतलब आपके मेरे जैसे लोगों का जो नॉन अमेरिकन हैं उनका डेटा अगर बिना वारंट के ये सारी सीक्रेट सर्विसेज यूएस की देखें, सुने, इंटेलिजेंसी सुने, तो उससे किसी अमेरिकन को कोई दिक्कत भी नहीं है। और हम लोग ओपन आर्म से इन विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे देश में मोनोपोली जैसी सिचुएशन भी बनाने देते हैं। यहां पे आप अगर देखें तो चाइना बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग था जब इसने इन सारी लोगों को रोक के रखा था। यहां पे आप देख सकते हैं कि हम चाइना के टिकटॉक को तो जी भर के गाली देते हैं, लेकिन वही काम जब यूएस करता है तो हम आंख मूंद लेते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आगे सुनिए दोस्तों। यहां पे उन्होंने कहा कि कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। टकर कार्लसन ने कहा कि कांग्रेसमैन डरते हैं कि उनको बच्चों की अश्लील तस्वीरें, वीडियोस उनके कंप्यूटर में ना डाल दिया जाए, और इस वजह से वो सेक्शन 702 ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट को उन्होंने बिना अपोज किए पास करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं गेस नहीं कर रहा, जैसा आपने सुना, जो लोग इस इंटेलिजेंस कमिटी को ओवरसी करते हैं, उनके ऊपर चेक्स बना के रखते हैं, वो खुद डरते हैं कि उनके कंप्यूटर में इस प्रकार की चीजें डाल के उन्हें रॉन्गफुली फ्रेम ना कर दिया जाए इन इंटेलिजेंसीज के द्वारा। आप देख सकते हैं किस हद तक ये समस्या है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे जो कॉन्वर्सेशन हुआ है इस पॉडकास्ट में, यहां पे आप देखिए विदेशी मीडिया किसको पिक कर रही है। टकर कार्लसन ने डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर क्या कहा। हमारे यहां ये जो सो कॉल्ड है ना, अगर आप देखें तो राष्ट्रवादी पत्रकारिता का परचम लहराने वाला जो न्यूज चैनल है वो भी यही बात पे चर्चा कर रहा है। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर टकर कार्लसन ने देखिए क्या कहा कि ये तो फेक है, असलियत नहीं है। अरे भैया, टकर कार्लसन कोई साइंटिस्ट है क्या? टकर कार्लसन क्या कहता है बिग बैंग थ्योरी पे, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी पे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों सुनूं? वो आदमी जिसका जो नॉलेज है, जिस फील्ड का है, मैं उसको फोकस करूंगा ना। लेकिन यहां पर ये जानबूझ के इन बातों को फोर्स किया जा रहा है आप तक कि इस आदमी ये तो पागल है, ये कुछ भी बोलता है। यही वर्जन बनाने के लिए, क्योंकि उसने उस पूरे पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, लेकिन उसको डिस्क्रेडिट करना है, उसको ब्रश असाइड करना है, इसलिए फालतू की चीजों पर चर्चा हो रही है। भैया, वो पॉलिटिकल पत्रकार है, पॉलिटिक्स कवर करता है, तो उसके जो ओपिनियन पॉलिटिक्स पे है मैं उसको तवज्जो दूंगा ना। मैं साइंटिस्ट से पूछूंगा वो इवोल्यूशन पे क्या सोचता है, ना कि टकर कार्लसन से पूछा, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसने जो पूरा जीवन यूएस के पॉलिटिक्स को समझने में जो बिताया है, वो जब यूएस पॉलिटिक्स पर जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको ये कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं ताकि आपके मेरे जैसे लोगों तक सच ना पहुंचे। लेकिन हमारा काम है आप तक वो लेकर के आना है। आप भी जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो को दबाया जाएगा किसके द्वारा आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वीडियो आप तक हम लेकर के आएंगे। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें भारत संवाद 11, वहां पे डीएम करें,
वो भी सुनेंगे क्या बातें हम करते हैं। इसके सिवा दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेक श्योर और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी जरूर देखिएगा।